A very good morning to all again. So we have reached towards the end of the 10 days faculty development program on fundamentals of research in social sciences. On behalf of the Department of Humanities and Social Sciences, I, Dr. Farha, extend my heartfelt welcome to our online and offline faculty members. Today's session is on academic writing and publication, design of paper using template, calculation of impact factor of a journal, citation index, ISBN, and ISSN. So before we begin, I would like to introduce our keynote speaker, Dr. Ark Verma, who is an assistant professor of psychology in the Department of Cognitive Science at IIT Kanpur. He has passed his BA in psychology and English literature from University of Allahabad in 2007 and his MA in Cognitive Sciences, University of Allahabad in 2009. He went on to do his PhD in psychology from University of Gent, Belgium. At the Center for Reading Research, UGent, under the supervision of Professor Mark Bryce Burt in 2014. His research interests include lateralization of cognitive functions, visual word recognition, social cognition, and bilingualism. We welcome you, sir. Dr. Verma, we are very happy and lucky to have you today. And now we request you to begin the session. Thank you, Dr. Farah, for the nice introduction. Good morning and welcome all faculty members in this workshop. I am told that today is the last day of the workshop, so I understand that most of you would have been slightly exhausted by the detailed sessions that you have been doing. For today's session, I was asked to speak on publication. I was asked to speak on publication, calculating impact factor, those kind of things. But academic writing is something which is it is an interesting art, because it's not writing just for fun. It is typically what you would call goal-oriented writing. So one of the things that I would like to begin with telling you is that academic writing is basically is writing for a purpose, and typically what we are doing while we are actually preparing a manuscript for publication is that we are writing it for a purpose, for a particular goal. Now I was just listening to the introduction that Farah gave. So all of us here probably are faculty from the social sciences, and there's very interesting aspect in social sciences that you get to hear every now and again, that people in the social sciences write a lot. So if you see the way we take our exams or write our answer sheets right from our undergraduation days to post graduation days and so on, you will see that we are typically a very rather verbose set of people. We do want to elaborate. We do have a lot to say about the topic that we're being asked about, and that ways what you will see is that we basically get rather longish answers, rather longish reports. Sir, sorry basically to interrupt. something. Excuse me, sir. Sorry to interrupt, but sir, could you please go bilingual? There are faculty members from different mediums. All right. Okay. I'll try to be bilingual. So, okay. Academic writing, for that matter, is something like you are preparing to report something. It's as I said, कि जो academic writing है, academic writing या जब journal article लिखते हैं या जब publication के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो हम ये कर रहे हैं कि भाई हमें कुछ बताना है, कोई एक पर्टिकुलर गोल के लिए लिख रहे हैं. See, as opposed to fiction, basically as opposed to writing a novel, और अगर हम एक कहानी लिख रहे हैं, अगर हम एक कविता लिख रहे हैं, टिपिकली वो किसी गोल के लिए नहीं है. टिपिकली आप के मन के उद्गार जो हैं वो आपने लिखे कागज पर, और वो अपने हिसाब से उनको शेप करा, अपने हिसाब से. उसमें कोई फिट या एक कह लीजिए कि एक सेट फॉर्मेट नहीं है. So you typically take up anything that your mind feels like, and you start with that. Now academic writing
is slightly different from this. So the first point that I would like to tell you, and I'm not using any PowerPoint presentation today. So if people want, I'll tell you what points you can note down, and maybe even if you just write it on a piece of paper, आप वापस उसको जाकर के कंसल्ट कर सकते हैं जब आप अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स बना रहे हो. तो पहली चीज जो है एकेडमिक राइटिंग के बारे में जो सबको ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि एकेडमिक राइटिंग एक गोल ओरिएंटेड चीज है. एकेडमिक राइटिंग किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए किया जाता है. अब वो पर्पस क्या है, इस पर आगे चलकर बात करते हैं कि भाई एकेडमिक राइटिंग अगर आप कर रहे हैं, आप एक जर्नल आर्टिकल लिख रहे हैं, आप एक मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसका गोल होगा. और गोल जो है वो क्या है, गोल अमूमन करके ये होता है कि भाई हमने कोई रिसर्च कंडक्ट करी, हमने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे, हमने कोई सर्वे किया, कुछ इंटरव्यू कैरी आउट करे, और उससे जो हमें ज्ञान मिलता है उस एक्सरसाइज से, चाहे आप चाहे आप एक्सपेरिमेंटल काम करते हो, चाहे आप सर्वे काम करते हो, चाहे आपकी क्वालिटेटिव स्टडी है, आपने जो स्टडी कंडक्ट करी उसको आपने रिपोर्ट करना है. उसको आपको इस तरह से रिपोर्ट करना है कि भाई लोग जो है, जो आपके आर्टिकल को पढ़ें, वो उस चीज को, दो तीन चीजें हैं वहां पर, वो उस चीज को पूरी तरह समझ सकें. मगर साइंटिफिक राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग में सिर्फ समझना या सिर्फ बात का कन्वे हो जाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं. रेफरेंस के लिए मैं अगर बताऊं तो, अगर आपको पता होगा कि भाई एक जब साइंस हम करना शुरू करते हैं, सोशल साइंसेज हम करना शुरू करते हैं, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड द हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल. जैसे कार्ल पॉपर या और लोगों ने कहा कि भाई साइंस जो है वो एक पर्टिकुलर तरह का मॉडल फॉलो करती है जिसे हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल कहते हैं, जिसमें कि आप रिसर्च रिव्यू करते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन ढूंढते हैं, गैप्स इन द लिटरेचर जिसे कह लो, गैप्स इन द लिटरेचर ढूंढते हैं, उसके बाद आप अपना टास्क डिफाइन करते हैं, फिर आप वो टास्क एडमिनिस्टर करते हैं, उसका कुछ प्रोसीजर होगा. आपने पार्टिसिपेंट सिलेक्ट किए, सैंपल सिलेक्शन किया, आपने टास्क एडमिनिस्टर किया, फिर आपके पास कुछ डेटा आया, उस डेटा को आपने एनालाइज किया, और फिर उस डेटा को एनालाइज करने के बाद उस डेटा से जो भी आपको निष्कर्ष मिले, आपने उन निष्कर्षों को क्रमबद्ध तरीके से एक सुलभ फॉर्मेट में पेश किया, और वही आपका आर्टिकल है. सो ये जो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल का एंड पॉइंट है, वही जो है आपका आर्टिकल है, जो कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर में ऐड करता है. सो दैट इज व्हाट कंप्लीट्स द सर्कल. नाउ there are many approaches in this that you can take. You can sort of look कि अच्छा ठीक है, इसको हम किन किन नजरिए से देख सकते हैं, क्या है ऐसा जो हम अपने आर्टिकल के थ्रू करना चाहते हैं. इसमें भी कई पार्ट हैं. पहला पार्ट जो है, या फिर अगर, और देखिए जब किसी चीज में बहुत से पार्ट होते हैं तो उसको पिरोने के लिए एक धागा चाहिए. आपने बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कि आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए, आपने लिटरेचर रिव्यू किया, फिर आपने क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, फिर आपने कहा कि अच्छा मैं ये प्रोसीजर अपनाऊंगा, मैं या तो सर्वे मेथड करूंगा, या मैं इंटरव्यू लूंगा, या मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा, और फिर उसके बाद आपने उस डेटा कलेक्शन किया, वो भी आप बताना चाहेंगे, फिर आपने आपके डेटा में क्या मिला, उस पर आपने कुछ एनालिसिस रन किए, वहां क्या मिला. तो ये इतने सारे 5 6 7 8 पार्ट हो गए इसमें, और ये सारे पार्टों को आपको रिपोर्ट करना है, तो इनको पिरोने के लिए एक धागा चाहिए होता है. ये जो धागा है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. ये धागा ही जो है ये बेस है एकेडमिक राइटिंग का. ठीक है. तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि अंग्रेजी और हिंदी सभी लोगों को आती है, क्योंकि मैं सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी में बोल सकता हूँ. So I will try and switch between both these languages. कहीं पर if you want me to repeat, please unmute yourself and you can tell me. Coming back, ये जो धागा है इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई ये नैरेटिव है, ये एक स्ट्रक्चर है कि भाई क्या हम कहना चाह रहे थे, कहाँ से हमने शुरुआत करी. तो कभी भी आप एक आर्टिकल को सोचें कि भाई ये आर्टिकल मुझे लिखना है, जो पहली चीज आपको करनी है, दो तरह से होता है. आप बॉटम अप तरीके से जा सकते हैं कि भाई आपने रिसर्च कर ली, सब कुछ कर लिया, फिर उसके बाद आपने सोचना शुरू किया कि अच्छा ठीक है अब मैं इसको लिखूं कैसे. 90% रिसर्चर्स जो हैं वो इसी तरह से काम करते हैं. उन्होंने अपनी स्टडी बनाई, उन्होंने डेटा किया, और फिर जब डेटा आ गया उसके बाद उन्होंने सोचा कि यार इसको रिपोर्ट कैसे करना है. हम क्या करते हैं, हम आखिरी में सोचना शुरू करते हैं, और जब हम आखिरी में सोचना शुरू करते हैं तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, वी आर बेसिकली प्लेइंग कैच. हम लोग वी आर चेजिंग समथिंग बैकवर्ड्स. और वो जो है वो हमेशा एक बहुत आप ये कह लीजिए, इट इज नॉट अ वेरी इफेक्टिव स्ट्रेटजी. Mainly what we are trying to do
ideally what we should actually do is that we should have a plan from the beginning. Even before you have conducted your literature survey, even before आपने task बनाया, even before आपने question identify किया, इन सभी चीजों के पहले आपके दिमाग में एक broad plan होना चाहिए कि भाई क्या मुझे करना है, कि क्या काम एग्जैक्टली मुझे करना है, और वहां से ही डिसाइड हुआ कि भाई उस काम को अंततः किस तरह से आपको पेश करना है। तो जो पहली बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि भाई यू शुड हैव अ हैंडल ऑन योर नैरेटिव। यू शुड बेसिकली से व्हाट इज इट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, एंड सपोज यू पिक अप अ टॉपिक। लेट्स से आपने सोचा कि फॉर एग्जांपल मेरा रिसर्च साइकोलिंग्विस्टिक्स में है अभी, और सोशल साइकोलॉजी में है एट द मोमेंट। जो रिसर्च प्रोग्राम मेरे लैब में चल रहा है, इट इज मोर अबाउट विजुअल वर्ड रिकॉग्निशन इन हिंदी। सो हम हिंदी के शब्द कैसे पढ़ते हैं, और इस चीज पर मैं काम कर रहा हूँ इस समय। तो जब मैं अगर सोचूं कि भाई मुझे एक पेपर लिखना है, तो पहली चीज जो सोचनी होगी, या पहली सवाल जो मन में आना चाहिए वो आना चाहिए, अच्छा किस चीज पर लिखना है, क्या करना चाहते हैं, और वहां से आप शुरू करते हैं। तो इवन बिफोर यू हैव सॉर्ट ऑफ स्टार्टेड डूइंग एनीथिंग, आपके दिमाग में बड़ा क्लियर होना चाहिए कि भाई हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। जो हम करना चाहते हैं, जो टॉपिक है, वहां पर आपने शुरुआत करी आपने। और कई बार मैं ये करता हूँ कि इवन व्हेन आई एम टीचिंग माय स्टूडेंट्स, इवन जब मैं अपने स्टूडेंट्स से बोल रहा हूँ कि भाई ठीक है, तो मैं इस चीज पर एक पर्चा तैयार करना है, तो मैं अक्सर उनको बोलता हूँ कि सबसे पहले जाकर के अपनी डायरी में एक टाइटल लिख लीजिए। ठीक है, मैं भी टाइटल टेम्पलेट रेफरेंसिंग पर आऊंगा थोड़ी देर बाद, बट आप सबसे पहला काम ये करते हैं कि भाई अपनी डायरी में जाइए और एक टाइटल लिख लीजिए कि ब्रॉडली मैं ये करना चाहता हूँ। पहला 5 से 10 मिनट, इनफैक्ट कई बार 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कई बार उस टाइटल पे जाता है, और आप वो टाइटल को देखते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, क्या मैं करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, लॉट ऑफ टाइटल्स बिगिन विद कि भाई इन्वेस्टिगेटिंग फलाना फलाना प्रोसेस इन यूजिंग दिस मेथड। वहां पर वो किया आपने। कई बार आप अपने रिजल्ट्स के बेसिस पर करना चाहते हैं, कई बार आप कहानी क्या कहने वाले हैं। आपको सबसे पहला काम हमेशा, मतलब मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव में ये है कि जो कहानी कहना चाह रहे हैं उसको सेट करना बहुत जरूरी है। वो जो नैरेटिव जिसमें बाकी सारी चीजें आप बांधेंगे या पिरोएंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, अक्सर मुझे ये लगता है कि पहली चीज है कि दिमाग में आप कहीं पर एक टाइटल बना लीजिए, उस टाइटल को लिख लीजिए। और जरूरी नहीं है कि यही टाइटल जाएगा जब आप जर्नल आर्टिकल सबमिट करेंगे, बट ये टाइटल जो है ये कंस्ट्रेन कर देगा आपको कि भाई दिस इज व्हाट आई वांट टू डू, दिस इज व्हाट is the aim of my research enterprise, this is what the aim of my work is। जब वो सेट हो जाता है, उसके बाद आप अगले स्टेप्स लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दो चीजें यहां पर मैंने आपको बोली। पहली चीज है कि यू शुड स्टार्ट एट द स्टार्ट एंड नॉट एट द एंड। इफ यू हैव कंडक्टेड सम रिसर्च, रिजल्ट आ गया, डेटा एनालिसिस हो गया, आपको पता चल गया क्या मिला है, आप उसके बाद टाइटल लिखने जाएं, वो कई बार मुझे लगता है सही नहीं है। क्योंकि उसके बाद क्या होता है, एक चीज है कि कई बार वी आर ट्राइंग टू सी कि अच्छा ठीक है, नैरेटिव को इस हिसाब से सेट करें कि जो हमारा रिजल्ट है। इसमें दोनों तकनीकें हैं। पहला, उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। पहली तकनीक ये है कि भाई आप अपना टाइटल आपने तय कर लिया, लगभग एक कमोबेश एक सेट टाइटल है, और उस टाइटल के अंतर्गत आप आगे का काम स्टार्ट करें। जैसे पीएचडी थीसिस बच्चे स्टार्ट करते हैं कि भाई उनको एक टॉपिक दे दिया गया, अब उसके अंदर जो भी लिखना है वो उस टाइटल से स्टार्ट होगा। तो पहला काम ये है कि भाई टाइटल लिख लिया। दूसरा काम ये है कि भाई अच्छा ठीक है, उस टाइटल से अब हम कहानी बनाना कैसे शुरू करते हैं। एक चीज मैं शायद अभी तक मैंने कही नहीं, बट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जब वो स्टोरी का थीम क्या होगा, उसका प्लॉट क्या होगा। अगर कोई लिटरेचर वाले हैं यहाँ पर तो वो जानते होंगे कि वन ऑफ द critical aspects of the story when you start analyzing a story is the plot। Why not when you're writing your own story you keep your plot ready। तो क्या होगा कि भाई आपने एक अपना प्लॉट डिसाइड कर लिया कि भाई मैं एक कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, जिसमें कि फॉर एग्जांपल मैं इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ कि भाई डिसलेक्सिया से ग्रसित जो बच्चे हैं उनकी रीडिंग एबिलिटी में क्या कमियां हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं। सपोज आपने वहां से स्टार्ट किया, तो जिस हिसाब से स्टोरी राइटिंग में होता है कि भाई प्लॉट सेट कर लिया, फिर कैरेक्टर, आपने अपने कैरेक्टर डिसाइड कर लिया, भाई मेरा कैरेक्टर ये है, ये है, ये है। तो आपने जब आर्टिकल अपना लिखना सोच लिया कि भाई मैं ये करूंगी, ये मेरा टाइटल है, उस
नेक्स्ट थिंग ये है कि फिर योर लिटरेचर रिव्यू शुड अलाइन टू दैट टाइटल. सी लिटरेचर रिव्यू, और कई बार आप देखेंगे स्टूडेंट्स के साथ भी या खुद भी कि देर इज टू मच लिटरेचर ऑन द इंटरनेट. सो गूगल स्कॉलर पर जाइए, वेब ऑफ साइंस पर जाइए, कहीं पर भी आप जाइए, लिटरेचर बहुत है और अथाह लिटरेचर है. आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए, उसमें बहुत सारी चीजें हैं और कई बार आपको पता नहीं चलता है कि भाई क्या क्या पढ़ ले. और कई बार लगता है कि भाई ये भी बड़ा रेलेवेंट है, ये भी बड़ा रेलेवेंट है, ये भी बड़ा रेलेवेंट है, और ये मुझे सब कुछ पढ़ना चाहिए और ये सब कुछ जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है. बट वेन यू आर डूइंग academic writing, when you're preparing for a manuscript, what is very important is that you actually stick to exactly what your title is, exactly the story that you want to tell. So जो literature survey है, it should be very focused, it should be focused and structured within the bounds of the title that you have done. So this is something which I have found very useful for my research, and the way I approach writing a paper is that your literature survey typically, and you will see जब literature survey आप देखते हैं, रेफरेंसेस पेज में जाइए किसी आर्टिकल के, उसमें 200-250 आर्टिकल लिखे रहते हैं. आइडियल तो ये है कि आपने वो सभी 200-250 आर्टिकल पढ़े हो, बट टिपिकली अगर मैं एक प्रैक्टिकल अनुभव की बात करूं तो असल में आप टिपिकली अपने 10, 15, 20, 25 आर्टिकल ही पढ़ते हैं. उससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है कोई पेपर लिखने के लिए. तो आपने अपना टाइटल सेट किया, आपको पता है कि एग्जैक्टली दीज आर द एलिमेंट्स इन माय टाइटल. योर लिटरेचर सर्वे, हाउ यू आर अप्रोचिंग गूगल स्कॉलर, हाउ यू आर एक्चुअली searching for something is dependent on this. So for example, I'll give you some demonstrations while I'm at it. Just give me a minute. So I'm sharing my screen for online participants to benefit. मेरा स्क्रीन दिख रहा है सबको? कोई Yes, यस sir. बोल दे अगर. हाँ. तो फॉर Yes, sir. एग्जाम्पल अब मुझे एक आर्टिकल है, मान लो मैं लेटर पोजीशन पर आर्टिकल लिखना चाहता हूँ, तो हाउ डू आई बिगिन माय लिटरेचर सर्च, जो पहला स्टेप होता है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू डू समथिंग ऑन लेटर पोजीशन. तो किस लैंग्वेज में मैं पढ़ना चाहता हूँ, और आपके कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, बट मैं आपको जस्ट थोड़ा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ. नाउ वन ऑफ द थिंग्स इज कि आप देखिए कि भाई देखिए बहुत सारे रिजल्ट आते हैं, बहुत सारे रिजल्ट आ रहे हैं. 2017 का भी पेपर है, 2009 का भी पेपर है, 2008 का भी, और आप थोड़ा सा सेकंड थर्ड पेज पे जाएंगे तो 2000 2010 1990s के भी पेपर आने लगे. One of the things that you have to do is कि your literature search should also be very focused. Exactly what is it that you're talking about? If you're talking about the letter position effect, maybe this one will be relevant. Maybe, and this is by the way repeated and transposed letters, ये भी लेटर पोजीशन के बारे में है. फिर ये ऑर्थोग्राफिक प्रोसेसेस के बारे में है. कुछ चीजें ये मॉर्फोलॉजिकल डिकम्पोजिशन के बारे में. सो यू हैव टू बेसिकली फिगर आउट कि व्हाट इज इट दैट इज मोस्ट रेलेवेंट फॉर योर, एक सेकेंड, व्हाट इज इट दैट इज रेलेवेंट फॉर योर वर्क. एंड बेसिकली आप क्या करना, आप कौन सी कहानी कहना चाह रहे हैं. ठीक है. तो पहला काम ये होगा, आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग नाउ. पहला काम ये होगा कि यू बेसिकली कलेक्ट लिटरेचर दैट इज रेलेवेंट टू द स्टोरी दैट यू वांट टू टेल. Only those 5, 10, 15 papers, and you can also have a sense of chronology here. जब आप डाउनलोड करने जाते हैं पेपर, तो आप ये भी कर सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मैंने सबसे रिसेंट 5 साल उठा लिए, उसके बाद के उसके थोड़े पहले के 5 साल उठा लिए, और कुछ बहुत शुरुआती पेपर जो उस टॉपिक में आए होंगे, तो आप सबसे पीछे चले जाएं और शुरुआती काम कहाँ से स्टार्ट हुआ है. तो जो पहला काम है वो लिटरेचर रिव्यू को बिल्ड करना है. जब आप एक पेपर पर जाते हैं, और अभी मैं आपको एक टेम्पलेट भी दिखाता हूँ, अगर आप एक पेपर पर जाते हैं, उस पेपर में कुछ पार्ट्स होते हैं. ठीक है. तो फॉर एग्जाम्पल आई विल शो यू अ टेम्पलेट कि भाई एक पेपर का टेम्पलेट किस तरह का होता है, या एक पेपर में क्या पार्ट्स होते हैं. अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन. आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा, एक मैन्युस्क्रिप्ट टाइटल होगा, ऑथर नेम होगा, मान लीजिए एक से ज्यादा ऑथर हैं तो 2-3 लोगों के नाम हो गए। फिर आपने सुपरस्क्रिप्ट करके 1 या 2 लिख दिया कि भाई कौन से इंस्टीट्यूशन से ऑथर आता है। फिर थोड़ा और डिटेल कर दिया आपने ये सब। बट जब आप और फिर अगली बात हुई कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वगैरह, वो तो नॉर्मल सी चीजें हैं। फिर आपने जब आर्टिकल लिख गया, टिपिकली एब्स्ट्रैक्ट शुड बी रिटन आफ्टर यू हैव रिटन द आर्टिकल, आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड द आर्टिकल। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली इसलिए सबसे आखिरी में लिखना होता है क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट में 200 शब्दों के अंदर या 250 शब्दों के अंदर मैक्सिमम, टिपिकली काफी सारे जर्नल्स में 160 शब्दों का लिमिट रहता है, कुछ में 160 से लेकर 300 शब्दों की लिमिट रहती है। तो वो 160 से 300 शब्दों की लिमिट में आपने डिसाइड कर लिया कि भाई मेरा आर्टिकल किस चीज के बारे में है, जिसमें आपने थोड़ा सा टॉपिक के बारे में बताया कि ये टॉपिक क्या है, क्यों मैंने इस टॉपिक को पिकअप किया, इस आर्टिकल में मैंने किया क्या, मुझे मिला क्या, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ये 4 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हो, व्हाट इज इट दैट यू हैव डन, यू माइट वांट टू नोट दिस डाउन। What is it that you have done in this paper? Why is this topic relevant? What is the procedure, etc., task that you have used? What did you find? And how your finding is important. ये 4-5 points हैं जो abstract में बड़े important है। आप देखिए यहाँ पर भी है कि 2 types of abstract होते हैं, one is structured, other is not। 300 वर्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। स्ट्रक्चर्ड आर्टिकल्स में टिपिकली पर्पस हो गया, रिजल्ट ऑब्टेन, कंक्लूजन, ये सारी चीजें आ गई। नेक्स्ट पार्ट जैसे मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन या लिटरेचर सर्वे कई बार हम कहते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अभी जिस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि भाई लिटरेचर सर्वे कैसे बनाते हैं। लिटरेचर सर्वे बनाते हैं बड़ा फोकस्ड होकर के। आपने अगर कोई टॉपिक उठा, टिपिकली उस टॉपिक का कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने लेटर पोजीशन इफेक्ट के बारे में बात करना शुरू किया। लेटर पोजीशन इफेक्ट का ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है विजुअल वर्ड रिकॉग्निशन, यानी वर्ड रिकॉग्निशन कैसे काम करता है भाई, क्या है वर्ड रिकॉग्निशन, हाउ डू पीपल रीड वर्ड्स, इन रीडिंग वर्ड्स व्हाट आर द टास्क दैट दे आर डूइंग। आपका कोई और भी टॉपिक हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप काम करना चाहते हैं, आई डोंट नो, मे बी पर्सनैलिटी फैक्टर्स एंड एकेडमिक अचीवमेंट। तो अगर आप पर्सनैलिटी फैक्टर्स और एकेडमिक अचीवमेंट के बारे में मान लीजिए लिखना चाह रहे हैं, तो आपने फिर उसको स्ट्रक्चर किस तरह से करना है। आपको देखना है कि भाई पर्सनैलिटी फैक्टर क्या होते हैं, पर्सनैलिटी फैक्टर और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या इंटरेक्शन है, एकेडमिक अचीवमेंट पर पर्सनैलिटी फैक्टर के इम्पैक्ट के किस तरह के रिजल्ट्स हैं, क्या क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है। जब ये सारी चीजें क्रमवार तरीके से आप लिखने लगते हैं, आपका इंट्रोडक्शन थोड़ा एक स्ट्रक्चर में आने लगता है। टिपिकली कोशिश ये होनी चाहिए कि जब भी आप एक इंट्रोडक्शन सेक्शन बना रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा शुरुआत, ऑब्वियसली थोड़ी सी पुरानी रिसर्च को आप रेफर कर सकते हैं कि भाई ये इस ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया। बट कोशिश ये रहनी चाहिए कि आपने जितने रीसेंट सोर्सेज हो, मान लीजिए अभी 2024 में हम हैं, इट विल बी गुड, इट विल बी कंसिडर्ड नाइस इफ यू हैव यूज्ड रेफरेंसेस from 2020 onwards. So recent references are typically more valued. So recent references के आपने ब्रॉडली लिखा कि भाई पर्सनैलिटी फैक्टर्स क्या होते हैं, पर्सनैलिटी एकेडमिक्स को किस तरह से अफेक्ट करती है, वो सारी चीजें आपने लिखी। अंत में जब आप आते हैं, या टुवर्ड्स द एंड ऑफ योर इंट्रोडक्शन व्हेन यू आर अराइविंग, there is where you have to situate your question. What is the exact question that you are asking? For example, you are interested in the effect of extrovertness or introvertness on the academic achievement in schools or classes, whatever. तो अगर इन दोनों के टॉपिक, तो आपका जो एंड है इंट्रोडक्शन का, वो इस क्वेश्चन को अच्छे से एस्टैब्लिश करना चाहिए। इन 2 स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में 1 से 2 पैराग्राफ आपके पास होने चाहिए कि भाई ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, और फिर इन दोनों पैराग्राफ से आप अपना क्वेश्चन सिचुएट करेंगे कि हेंस या देयरफॉर या गिवन दिस डेटा, this is basically what is my question. So I am interested specifically, say for example, given that previous research has shown that extrovertness correlates highly with the academic achievement in classrooms, that is with this data in mind, this is the question that I'm asking. So for example, you're asking whether academic achievement is positively influenced by extrovertness or not. If you frame something like that, then you have a question by the end of it. जब एक बार आपने एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया, उसका अंतिम पार्ट जो आपके इंट्रोडक्शन का होगा, वो होगा कि भाई अब आपने हाइपोथेसिस देना स्टार्ट किया।
टिपिकली मैंने सोशल साइंसेज में देखा है कि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी हाइपोथेसिस बना देते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन डाल देते हैं एक आर्टिकल में। जब आप क्वेश्चन दे रहे हो अपने इंट्रोडक्शन में, जब आप हाइपोथेसिस दे रहे हो, इट इज ऑलवेज बेटर दैट क्वेश्चन शुड नॉट बी मोर देन 1 or 2। बहुत ज्यादा 10, 15, 20 क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। एक सवाल या दो सवाल जिसपे बड़ी स्पेसिफिकली आपने अपनी रिसर्च कंस्ट्रक्ट करी है, वो एक सवाल या दो सवाल आप देंगे। वो एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे, उससे रेलेवेंट आपने पीछे लिटरेचर लिखा हुआ है, और फिर उसी से रेलेवेंट आपने एक या दो आप कह सकते हो हाइपोथेसिस स्टेट करी। बहुत ज्यादा बड़ा सेक्शन नहीं होगा ये, टिपिकली 1 से 1.5 पैराग्राफ का 300 से 500 वर्ड का सेक्शन होगा, जिसमें आपने अपने क्वेश्चन को सिचुएट किया, अपने हाइपोथेसिस को सिचुएट किया, फिर आपने बताया कि टू एड्रेस दिस हाइपोथेसिस, दिस इज द मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज, दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट टू फाइंड एंड सो ऑन। तो यहां से जब आप क्लोज करते हुए आए, तब आपने अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन कंप्लीट किया। एक और बात, अच्छा बाय द वे मैं ही बोला जा रहा हूँ, तो अगर एट सम पॉइंट एनी ऑफ यू हैव अ क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड। आई विल टेक क्वेश्चंस इन द मिडिल आल्सो। यू डोंट नीड टू वेट टिल द एंड टू आस्क एनी क्वेश्चंस। अगर आपको बीच में कभी लगता है भाषा में कोई बहुत क्लियरली अगर मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो अगर आप मुझे कुछ रिपीट करने के लिए बोलना चाहते हैं हिंदी में या अंग्रेजी में, आप जरूर अनम्यूट करके या हैंड रेज करके जरूर पूछ सकते हैं। तो अदरवाइज ये बड़ा मोनोलॉग जैसा लग रहा है। मगर वापस आते हैं कि जब आपने अपना इंट्रोडक्शन सेक्शन कंप्लीट कर लिया है, जब आपने सारी चीजें सिचुएट कर ली हैं, उसके बाद का पार्ट क्या है? एक और जस्ट एज अ साइड नोट, राइटिंग एन एकेडमिक आर्टिकल इज ऑलमोस्ट लाइक कंस्ट्रक्टिंग एन आर्ग्यूमेंट इन कोर्ट, है ना? एंड ये पॉइंट जो है, आई टेल ऑल माई स्टूडेंट्स कि भाई व्हेन यू बिगिन टू राइट समथिंग, व्हेन यू बिगिन टू टेल अ स्टोरी, एक चीज मैंने बोली कि भाई राइटिंग एन एकेडमिक आर्टिकल इज गोल ओरिएंटेड, ये जरूर याद रखिए। गोल ओरिएंटेड है, एक नैरेटिव होना चाहिए, एक ओवरऑल नैरेटिव होना चाहिए, ब्रॉड नैरेटिव, कि भाई किस तरह से आप रिसर्च आर्टिकल को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज जो है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है एकेडमिक राइटिंग के बारे में, कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक कंस्ट्रक्टिंग अ केस इन द कोर्ट। और उसकी क्या खास बात है भाई, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ केस इन द कोर्ट? इट इज दैट आप शुरुआत से ही, अगर आपने कभी आई मीन इट्स नॉट अ प्लेजेंट थिंग, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया, या मूवीज में तो सबने देखा है कि भाई जो हमारे एडवोकेट्स होते हैं वो किस तरह से केस को बिल्ड करते हैं। स्टार्टिंग से ही वो फैक्ट्स, आपको शुरू से ही वो फैक्ट्स देने हैं जो आपकी प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करें। आपका लिटरेचर रिव्यू इस तरह से कंस्ट्रक्टेड होना चाहिए, बिकॉज अब हम लिटरेचर रिव्यू के एंड की बात करें, आपका लिटरेचर रिव्यू इस तरह से कंस्ट्रक्ट होना चाहिए कि एवरी लाइन इन दैट लिटरेचर रिव्यू इज टेलिंग कि अरे ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये गैप है, वो गैप को हाईलाइट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब भी रिव्यूअर आपका पेपर पढ़ेगा, वो एक्चुअली वो एक्चुअली ये देखेगा कि भाई इंट्रोडक्शन पढ़ के इस पेपर की कुछ इंपॉर्टेंट समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। द मोस्ट ऑफ द एफर्ट जो है कि वो इस चीज में होना चाहिए कि भाई हाउ इज इट दैट दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, और फिर दूसरी चीज उसमें होनी चाहिए कि जो हमने मेथड लिए हैं वो अप्रोप्रिएट क्यों है। कई बार आपने कोई क्वेश्चन सिचुएट किया और आपने कहा कि भाई मैं इस पर रिसर्च करना चाह रहा हूँ। द नेक्स्ट थिंग इज कि भाई ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपने अपने इंट्रोडक्शन में, अपने अपने लिटरेचर रिव्यू में उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से जता दी कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए लिटरेचर में? अगला स्टेप ये होना चाहिए कि भाई जो मेथड मैं चुन रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक्सपेरिमेंटल मेथड चुन रहा हूँ, तो मैं ये लिखूंगा कि भाई जिन्होंने इसके पहले इस टॉपिक में काम किया है मगर नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज करके काम किया है, उन सबके काम में क्या हमें नहीं मिल पाया। एक और चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग कि व्हेन यू आर राइटिंग, योर टोन शुड नेवर बी नेगेटिव, सो यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग प्रीवियस वर्क, you're already just pointing out कि this could be done extra, this thing could be added, ये और मिल सकता था। सो फॉर एग्जाम्पल जब आप अपने मेथड्स की तरफ जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन में कहीं पर आप बताएंगे ना कि भाई ये मेथड मैं चुन रहा हूँ आगे इसको करने के लिए, वहां पर आप ये बड़ा इंपॉर्टेंटली आपको ये जताना पड़ेगा कि भाई जो मैं मेथड मैं चुन रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है। This is exactly, मैंने देख so I mean it could be something like the importance of extrovertness versus introvertness has been investigated heavily in previous research for academic achievement.
However, most of the research conducted so far uses methods A, B, and C. Although these methods provide us very insightful and useful information about the particular phenomena, however, these are the aspects that are missing, which can be best covered by using an experimental method. तो वहां पर आपने एक आर्ग्यूमेंट पेश कर दिया कि भाई देखिए, जो मेरा मेथड है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस मेथड के बारे में थोड़ा सा बता दिया, उस मेथड के बारे में जो रेलिवेंट लिटरेचर है, फॉर एग्जांपल एक्सपेरिमेंटल काम में बहुत सारे टास्क होते हैं, या इंटरव्यू अगर आप कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, तो सर्वे के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। वहां पर आपको और ये डिटेल में बताना है कि भाई ये जो टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जो टाइप ऑफ इंटरव्यू मैंने लिया, या ये जो टाइप ऑफ टास्क मैंने लिया एक्सपेरिमेंटल काम अगर कर रहे हो, तो वो क्यों इम्पोर्टेंट है, वो क्यों बड़ा खास है, उससे क्या नई जानकारी मिलेगी चीज से, और जो और कहीं से नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें आपके इंट्रोडक्शन सेक्शन में, लिटरेचर रिव्यू सेक्शन में आ जानी चाहिए। और दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस, एक और चीज है कि जब ये स्ट्रक्चर रहेगा, देन यू विल नॉट फ्लो आउट ऑफ हैंड। टिपिकली अगर आप जर्नल आर्टिकल्स देखें, या टिपिकली आप कोई भी जर्नल देखें, वहां पर आप ये पाएंगे कि एक वर्ड लिमिट होती है, अमूमन 4 से 5 हजार वर्ड, या फिर इन सम केसेस मैक्सिमम 7,000 वर्ड्स, 8,000 वर्ड्स। अगर आप 10 से 12 हजार वर्ड का एक आर्टिकल लिख रहे हैं, अनलेस उसमें 5-6 एक्सपेरिमेंट हैं, वो बहुत लंबा हो जाता है, और वो फिर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको। तो एक चीज जो ब्रॉडली हमें याद रखनी चाहिए कि भाई हमारी वर्ड लिमिट क्या है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है राइटिंग के ही बारे में, और मैं बहुत स्ट्रक्चर में आपको ये नहीं दे रहा हूँ, मगर ये भी इंपॉर्टेंट है नोट रखना कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस इन एकेडमिक राइटिंग इज ब्रेविटी। संक्षिप्तता बड़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी आइडियाज आप कन्वे कर रहे हैं, जो भी चीजें आप कन्वे करना चाहते हैं, यूज द लीस्ट नंबर ऑफ वर्ड्स। टिपिकली व्हाट आई हैव सीन, एंड आई am a fan of essay type questions, so I generally I give my students long time, and I ask them to write a lot. Magar the best answers that you would always get will be brief answers. Should I stop my video? Hello? अच्छा, तो अगेन, तो ब्रेविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो जितना भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप कहानी कह रहे हैं, उसको कम से कम शब्दों में किस तरह से कहेंगे। लिटरेचर वालों का, और मैं भी बीए इंग्लिश लिटरेचर से हूँ, तो बीए इंग्लिश लिटरेचर वालों की एक बड़ी आदत होती है कि हम बहुत लंबा लंबा लिखते हैं। इवन सेंटेंसेस भी, आपका एक सेंटेंस होगा कम से कम 5 से 6 लाइन का, कई बार 8 लाइन का, कई बार 10 लाइन का होगा। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई उतना लंबा क्यों आप मतलब लिख रहे हैं, व्हाई इज इट दैट लॉन्ग। टिपिकली टिपिकली आप उसको जितना छोटा करेंगे वो उतना क्रिस्प होगा। एक एक चीज होती है, मुझे याद है एक बार मेरे सुपरवाइजर ने मुझे कहा था, प्रोफेसर मार्क ब्रिस्बर्ट, कि व्हेन यू आर राइटिंग इट इज ऑलमोस्ट लाइक मियांडरिंग। सो आप यहाँ से शुरू करते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, फिर ऐसे आते हैं, और वो कुल मिला के वो 10 लाइनों में आपने एक्चुअली एक ही बात कही है, एक ही सेंटेंस कहा है। तो लॉट ऑफ टाइम विच आई लर्नड, एंड टिपिकली अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं लिखता हूँ उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ 2-3 दिन, और उसके बाद दोबारा आकर के एडिट करता हूँ, एक बार और आके एडिट करता हूँ, और उसके बाद ही आर्टिकल को सबमिशन के लिए भेजता हूँ। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप 2 बार, 3 बार, 4 बार मल्टीपल ड्राफ्ट्स में इवन अपनी ही राइटिंग को एडिट करेंगे गैप्स के साथ, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो उस चीज को क्रिस्प बनाएगा, ये बनाएगा, क्योंकि देख पहली बार हम लोग लिख रहे थे, जो पहला ड्राफ्ट होता है वो काफी रफ सा होता है। वो आपने बेसिकली सारा मटेरियल रख दिया, मगर उसका स्ट्रक्चर कई बार डिफाइन नहीं होगा, उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होंगी, उसमें कई बार स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, कुछ वर्ड ओमिशंस होंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड टाइम आपको वो करना बड़ा इंपॉर्टेंट। बट इंट्रोडक्शन के बारे में बात हो गई, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि बाकी चीजें क्या है। जो बाकी जो पार्ट है, जस्ट टू सॉर्ट ऑफ शो यू द टेम्पलेट, जो बाकी पार्ट है उसमें फिर आप अपने मटेरियल या अपने मेथड्स को बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं।
मटेरियल्स और मेथड्स में आप स्टिमुलस बताएंगे, पार्टिसिपेंट बताएंगे, टास्क बताएंगे, प्रोसीजर बताएंगे, वो सारी सब लेवल हेडिंग्स हो गई। उसके बाद जब आपने ये सब कुछ बता दिया, उसके बाद आप अपने रिजल्ट्स पर आएंगे। उसके बाद आपने जब रिजल्ट्स बता दिए, फिर आप डिस्कशन पर आएंगे। कई बार डिस्कशन होता है, जनरल डिस्कशन होता है, कंक्लूजन होता है, फ्यूचर इम्प्लीकेशन होता है, बहुत सारी चीजें आती हैं इसमें। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि भाई इसके आगे हम कैसे बताएं। एक चीज है, अगेन गोइंग बैक टू द गोल ऑफ एकेडमिक राइटिंग, या जो जो उद्देश्य है एकेडमिक राइटिंग का, एक जर्नल आर्टिकल लिखने का, वो ये है कि आपकी रिसर्च रेप्लिकेट की जा सके। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज यू आर राइटिंग सो दैट अदर्स कैन डू द एग्जैक्ट सेम रिसर्च, एंड ए दे कैन वेरीफाई योर रिजल्ट्स, बी दे कैन बिल्ड अपॉन योर रिजल्ट्स। तो इस चीज के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप मटेरियल्स और मेथड सेक्शन पर आए, उसको जितना डिटेल में हो सकता है उतना डिटेल में लिखें। कई बार क्या होता है कि हमने एक रिसर्च कंडक्ट करी, हमारे पार्टिसिपेंट्स थे उसमें, ह्यूमन पार्टिसिपेंट्स थे उसमें, हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व किए, हमने उन्हें रिपोर्ट नहीं किया। तो कई बार जनरली आप देखोगे कि भाई पार्टिसिपेंट्स वर एज बिटवीन दिस एंड दिस, दे बिलोंग टू सच एंड सच इकोनॉमिक क्लास, सच एंड सच। It is very, very important that you tell all the details about your participants. It is very, very important that you provide all the details about how your stimuli were constructed. It is very, very important that you provide each and every detail about the procedure. For example, मैं जब एक्सपेरिमेंटल काम पब्लिश करता हूँ, तो उसमें प्रोसीजर में सेकंड बाय सेकंड का ब्यौरा आपको देना पड़ता है कि ये किया, फिर ये हुआ, फिर ये किया, फिर ये हुआ। और वो डिटेल आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है देना, बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ जर्नल्स नाउ, they ask you to submit your data, they ask you to submit the stimulus that you have done, so that if anybody wants to use that, and if anybody wants to conduct that research, they can. Okay. uh, yeah, so they can actually do the same things, take the exact same steps, and replicate whatever you have done. So one of the very important criteria of reporting is कि you have to be able to you have to enable people to replicate your work. ठीक है। सो ये तो इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया, फिर मैंने आपको बताया कि भाई मटेरियल्स और मेथड्स कैसे करते हैं। फिर रिजल्ट्स में भी सेम चीज अप्लाई करती है। एनी रिजल्ट्स दैट यू हैव गेट, सबसे पहले शुरुआत करनी कि भाई डेटा क्या कलेक्ट हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या थे आपके। वो डिपेंडेंट वेरिएबल को कई बार हम लोग थोड़ी बहुत क्लीनिंग करते हैं, जैसे रिएक्शन टाइम डेटा में हम लोग मीन प्लस माइनस 2 SD की क्लीनिंग करते हैं। एक्यूरेट रिस्पॉन्सेज पर ही रिएक्शन टाइम का एनालिसिस किया जाता है। ये सारे फैक्टर्स आपने शुरू में ही आपने बता दिए। आपने क्या सॉफ्टवेयर यूज किया है एनालिसिस के लिए, वो बता दिया। कौन से टेस्ट हैं, क्या डिजाइन है। टिपिकली हम लोग फैक्टोरियल डिजाइन करते हैं, रिपीटेड मेजर्स डिजाइन करते हैं, तो वो सारी चीजें डिजाइन में आपने बता दी। फिर आपने सारे एनालिसिस को डिटेल में विद ऑल द फिगर्स, विद ऑल द प्लॉट्स, विद ऑल द स्टैटिस्टिक्स आपने रिपोर्ट किया। तो वो ये सब बड़ा 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 इंपॉर्टेंट है। आखिरी पार्ट की तरफ अगर मैं जाऊं, आखिरी जो पार्ट होता है, वहां पर फिर वही बात आ गई कि यू आर गोइंग टू कॉल बैक योर नैरेटिव, यू आर गोइंग टू स्टार्ट वर्किंग एज एन एडवोकेट अगेन। ठीक है। पहली चीज, जब आप डिस्कशन सेक्शन लिखना शुरू करें, उसमें ऑब्वियसली पहला पैराग्राफ होता है कि भाई इस गोल के साथ हमने रिसर्च कंडक्ट करी थी, इस गोल का ये इंपॉर्टेंस था, और हमने ये टास्क किए, ये पार्टिसिपेंट्स थे, और हमें इनिशियल में रिजल्ट ये मिले। ठीक है। बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कॉलिंग बैक टू द इंट्रोडक्शन सेक्शन। आप वहां से दोबारा तार जोड़ रहे हैं कि भाई ये हमने बेसिकली किया। इसके आगे फिर आप वापस एक कह लीजिए एडवोकेट की भूमिका में आ जाते हैं कि भाई जो हमने किया है उससे हमने ये पाया है, इसकी ये इंपॉर्टेंस है, ये चीज पिछली रिसर्च के संदर्भ में मेल खाती है नहीं खाती। कई बार आप ये बोलना चाहेंगे भाई मुझे ये नई चीज मिली, कई बार आप ये बोलना चाहेंगे माय रिजल्ट्स आर इन लाइन विद प्रीवियस रिजल्ट्स, और फिर वहां पे आपने रेफरेंसेस कोट किए कि भाई पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये सारी चीजें करी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप अपना डिस्कशन सेक्शन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पहला सेक्शन जो है
वो ऑब्वियसली आपने इनिशियल चीजें सारी रिपोर्ट करी, भाई क्यों ये रिसर्च करी थी, क्या किया था क्या नहीं किया था। सेकंड पार्ट जब आप ये कर रहे हैं वो उसमें ये है कि भाई जो आपने आपने पहले तो अपने रिजल्ट्स को एन्यूमरेट करना स्टार्ट किया, कि मुझे ये मिला, ये इस संदर्भ में इम्पोर्टेंट है, इससे ये पता लगता है। रिजल्ट सेक्शन में आपने ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स बता दिए हैं। आपने बेसिकली कह लीजिए कि सारे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, सारे मेन इफेक्ट, सारे इंटरेक्शन इफेक्ट्स बता दिए हैं। डिस्कशन में उन्हीं को रिपीट करना है, मगर डिस्कशन में उन्हीं को वैसे ही रिपीट कर देंगे तो डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। डिस्कशन का मतलब है कि जो आपको मिला उस पर किस तरह से आप डिस्कशन कर रहे हैं। सो आपने पॉइंट्स लिखे कि भाई वी ऑब्जर्व्ड अ मेन इफेक्ट ऑफ दिस इन दिस, दिस मेन इफेक्ट इज इन लाइन विद प्रीवियस स्टडीज, बिकॉज ऑफ दिस वी अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है, एक्सट्रोवर्टनेस का एक्चुअली में एकेडमिक अचीवमेंट पर ये असर पड़ता है। ये चीज पुरानी रिसर्च में भी पाई गई है, इस फाइंडिंग का ये मतलब है, इस फाइंडिंग से हमें इस प्रोसेस के बारे में ये पता चलता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप क्रमवार तरीके से जो भी आपके मेन हाइलाइटेड रिजल्ट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। टिपिकली डिस्कशन सेक्शन में जो कई बार सब फाइंडिंग्स होती हैं, छोटी मोटी फाइंडिंग्स होती है, उस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं किया जाता। जो आपकी मेन फाइंडिंग्स है, जो हाईलाइट है, जो आपके केस का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पहलू है, आप उन पर बात करते हैं। उन पर बात करते हैं, फिर से अपने केस को रखते हैं कि भाई जैसे आपने शुरू में कहा था कि भाई आई वांट टू लेट्स से talk about the positive impact of extrovertness on this। तो वो जो है वो सारा आपका ये डिस्कशन सेक्शन में आएगा। ठीक है, और टुवर्ड्स द एंड आपको उस जो भी आपकी फाइंडिंग्स है उनकी इंपॉर्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीवियस रिसर्च, उनकी इंपॉर्टेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। सो जब आप रैप अप कर रहे हैं अपने डिस्कशन सेक्शन, तो आपने कंक्लूजन में ये सारी चीजें लिखी कि भाई ये कह रहा था, ये मिला, इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है, और इस निष्कर्ष के मायने फ्यूचर के स्टडीज के संदर्भ में क्या है। ये एक पूरा सेटअप जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा सेटअप आपको आपके पेपर को कंप्लीट करता है। अब जब आप डिस्कशन, कंक्लूजन, फ्यूचर इम्प्लीकेशन पर चले आए, आपने इंट्रोडक्शन पे कहीं से स्टार्ट किया था, यहाँ पर आपके पास मौका है दो चीजों का। पहला है कि यू कैन गो बैक एंड रिविजिट योर टाइटल एंड यू कैन से अच्छा टाइटल तो हमने ये किया था कि भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रोवर्टनेस और एकेडमिक अचीवमेंट, मगर जब हमने रिसर्च कंडक्ट कर ली, डेटा एनालाइज कर लिया, तो हमें ये पता चला कि भाई एक्सट्रोवर्टनेस का कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप जा करके पीछे अपने आर्टिकल का टाइटल थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जाकर के आर्टिकल के टाइटल को देखिए, टिपिकली टाइटल शुड बी समथिंग दैट इज ऑलरेडी टेलिंग अबाउट व्हाट यू आर गोइंग टू राइट इन दैट पेपर। तो वहां पर आपको चेंज कर, एवरीथिंग गोज टू प्लान, देन जिस टाइटल से आपने शुरू किया था वो ठीक है, यू कैन कंटिन्यू विद दैट। बट कई बार ऐसा पाया जाता है कि भाई यू विल नॉट फाइंड द सेम थिंग एंड you'll want to go back and update your title। दूसरी चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कही कि भाई एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, तो एब्स्ट्रैक्ट जब आपने अपना सब कुछ कंक्लूजन, फ्यूचर इम्प्लीकेशन, जनरल डिस्कशन सब लिख लिया है, उसके व्यू में, ये पूरे आर्टिकल के व्यू में उसका एक कंडेंस फॉर्म 5 से 6 लाइन का, 10 लाइन का आपका एब्स्ट्रैक्ट होता है, जिसमें आपने इंट्रोडक्शन से थोड़ा पार्ट लिया कि भाई ये रिसर्च इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका ये कंटेक्स्ट है, मैंने ये किया, मुझे ये मिला, उससे ये निष्कर्ष निकला, उस निष्कर्ष के क्या फायदे हैं, ये 5-6 लेवल आपने क्रिएट कर दिए, और ये सारी चीजों को आपने अपने एब्स्ट्रैक्ट में लिखा। तो ब्रॉडली यही है एक पेपर का फॉर्मेट। ब्रॉडली यही एक एनाटॉमी है कि भाई आप एक पेपर किस तरह से लिखते हैं। इसके बाद टेक्निकल चीजें आ जाती हैं कि भाई आपने रेफरेंसेस कैसे लिखे। तो सोशल साइंसेज में टिपिकली हम लोग एपीए का फॉर्मेट, एटलीस्ट साइकोलॉजी से हूँ मैं, तो साइकोलॉजी में हम लोग एपीए का फॉर्मेट यूज करते हैं। आई एम श्योर सोशल अदर सोशल साइंसेज में लाइक सोशोलॉजी और बाकी सब्जेक्ट्स में भी कुछ तो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। आप वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट को ले लीजिए और उसके साथ में आपने अपना रेफरेंसेस कंपाइल किया। इट इज ऑलवेज अ ग्रेट आइडिया कि जब आपने अपने हिसाब से मैन्युस्क्रिप्ट कंप्लीट कर ली है, तो आपने फिर उसको 1-2 दिन का ब्रेक दिया, फिर दोबारा उसको पढ़ा, जो भी ग्रामेटिकल एरर्स हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं, वर्ड ओमिशंस हैं, उनको करेक्ट करा। कई बार ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई ऑल्सो लुक एट द पिच, ऑल्सो लुक एट कि भाई कौन से एम्फेसिस के तरीके हैं जिसको आप मिस कर रहे हैं, कौन सी चीजों से आप अपने फाइंडिंग्स को और हाईलाइट कर सकते हैं। तो ये जो है ये टोटल मिल करके आपका एक पेपर का फॉर्मेट बनता है।
दो तीन चीजें और थी जो प्रैक्टिकल इश्यूज हैं। तो मैंने आपको एक ब्रॉड फॉर्मेट जरूर दे दिया कि भाई एक पेपर का क्या फॉर्मेट होना चाहिए, मगर अगर आप बोलें कि भाई इसके और प्रैक्टिकल चीजें क्या हैं, जैसे इम्पैक्ट फैक्टर हो गया या फॉर्मेट हो गया ऑफ राइटिंग, या ISBN ISSN वगैरह हो गए, ये सारी चीजें आजकल अलग से करने की जरूरत नहीं है। टिपिकली this is linked to the kind of discussion decisions that you have taken in the beginning. So for example, even before I start to write a manuscript, मैं typically क्या करता हूँ, मैं कोई भी जर्नल जो मैंने सोचा कि भाई ये जर्नल में मैं इसको सबमिट करने वाला हूँ, तो मैं उस जर्नल के वेब पेज पर जाता हूँ, और उस जर्नल के वेब पेज पर जा करके आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि भाई उस जर्नल की क्या फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स है। कई बार अगर आप ये शुरू से कर लें तो ये बड़ा हेल्पफुल रहता है इस चीज के लिए कि भाई आप अपना पेपर प्रिपेयर कैसे करेंगे। सो फॉर एग्जांपल आई एम जस्ट शोइंग यू वेब पेज ऑफ अ जर्नल दैट आई हैव पब्लिश्ड इन। सो ये बिहेवियर रिसर्च मेथड्स है। अब बिहेवियर रिसर्च आप किसी भी जर्नल के उस पर जाएंगे, आप कोई भी जर्नल आप गूगल पे टाइप करिए, आप उसके होम पेज पर जाएंगे और आपको इस तरह का कुछ एक सेटअप मिलेगा। तो कई हर बार हर जर्नल में आपको एक सेक्शन मिलता है जो एम्स एंड स्कोप होता है। एम्स एंड स्कोप पे आप जाइए। एम्स एंड स्कोप के अंदर वो थोड़ा सा बताते हैं कि भाई ये जर्नल किस तरह के आर्टिकल्स एक्सपेक्ट करता है, क्या चीजें इसमें होनी चाहिए। फिर उसके बाद आप साइड में देखेंगे और कई बार नीचे लाइन से लगी रहती हैं चीजें कि भाई सबमिशन के लिए क्या चाहिए, तो सबमिशन गाइडलाइंस पर जाएगी। सबमिशन गाइडलाइन में आप देखिए काफी सारे पार्ट्स होते हैं कि भाई जनरल इंफॉर्मेशन क्या है, ओपन प्रैक्टिसेस, अफर्मेशन जो डिक्लेरेशन आपको देने हैं, स्टैटिस्टिक्स कैसे आपको करनी है, मैन्युस्क्रिप्ट का क्या स्टाइल होगा, फिगर्स का क्या स्टाइल होगा, ये सारी चीजें बताई हुई होती हैं। तो अगेन हाउ टू सबमिट वगैरह ये तो चलो ठीक है, मगर क्या डिक्लेरेशंस देने हैं, सबमिटिंग एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग अ मैन्युस्क्रिप्ट क्या क्या अफर्मेशंस देने हैं आपको, ओपन सोर्स है नहीं है, ये सारी चीजें आजकल बड़ी रेलेवेंट हो गई हैं जानना। तो किसी भी जर्नल के बारे में आप जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप और ये हर जर्नल में अपना इसका सेटअप होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये क्यूजेप है, क्यूजेप भी बड़ा अच्छा जर्नल है। तो अगर आप इसमें जाना चाहते हैं, इनका इस तरह का पेज है। इनके पास भी अपना सबमिशन गाइडलाइंस होता है। यहाँ पर भी देखिए आपको सब डिटेल दी हुई है, एम्स एंड स्कोप दिया हुआ है, आर्टिकल टाइप्स दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल स्कोप आपने पढ़ लिया कि भाई ये एम्स एंड स्कोप क्या है इस जर्नल के, आपको मिल जाएगा कि भाई एग्जैक्टली ये जर्नल किस तरह की राइटिंग एक्सपेक्ट करता है, क्या टॉपिक्स एक्सपेक्ट करता है, किस तरह का फॉर्मेट एक्सपेक्ट करता है। फिर सबमिशन गाइडलाइंस पे आप जाएंगे तो आपको बाकी डिटेल्स मिल जाएंगी कि भाई किस तरह के आर्टिकल टाइप, किस तरह के पेपर आपको लिखने हैं। आर्टिकल टाइप जैसे इसमें लिखा है ओरिजिनल आर्टिकल, रिसर्च रिपोर्ट्स, शॉर्ट रिपोर्ट्स, कमेंट्रीज एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। कई बार अलग अलग जर्नल्स के रेफरेंसेस के फॉर्मेट अलग अलग होते हैं, अलग अलग जर्नल के एक्सपेरिमेंट के फॉर्मेट और होते हैं। तो वो सारी चीजें भी आपको देखनी पड़ती हैं कि हाउ आर यू प्रिपेयरिंग, हाउ आर यू सॉर्ट ऑफ यू नो राइटिंग और प्रिपेयरिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट, सबमिशन कहाँ आप करना चाहते हैं। ब्रॉडली आई थिंक यही सारे पॉइंट्स हैं जो एकेडमिक राइटिंग, स्पेशली आई हैव फोकस्ड माय टॉक मेनली ऑन journal article preparation, journal article submission. There are also other forms of academic writing like book chapter writing. Now, book chapter writing in that sense is relatively free formed, in the sense that you have a broad topic, you have a broader mandate, you don't have a limit of number of words. एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिफरेंस है जर्नल आर्टिकल राइटिंग में और बुक चैप्टर राइटिंग में, वो ये है कि बुक चैप्टर राइटिंग में बहुत फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। बुक चैप्टर राइटिंग एक ब्रॉड स्कोप के साथ लिखी जाती है। इट इज नॉट एज फोकस्ड जस्ट टू रिपोर्टिंग योर रिसर्च, इट इज स्लाइटली ब्रॉडर। जब आप बुक चैप्टर लिखेंगे तब आप उस टॉपिक को थोड़ा और ग्लोबल लेवल पर अप्रोच करेंगे, बहुत सारी चीजें आप उसमें बताएंगे। क्रमवार तरीके से आप देखेंगे कि बुक चैप्टर टिपिकली शुड बी एग्जॉस्टिव। बुक चैप्टर में सारी चीजें आनी चाहिए, कुछ मिस नहीं होना चाहिए, पुरानी चीजें, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स भी आने चाहिए और
जो आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो चीजें हम बड़ी रेलेवेंट है, वो यही दो टाइप की राइटिंग है भाई। बुक चैप्टर्स आपने लिखे या फिर आपने जर्नल आर्टिकल्स लिखे और उनको किस तरह से प्रिपेयर किया। So broadly, this is all that I wanted to sort of share. I am open to taking questions now. So I can see there are a couple of questions in the chat box. So somebody has asked, in interdisciplinary research, one can get articles in both the fields. Then how can one select articles for the research paper? Now, obviously, when you go on Google Scholar, when you go on Web of Science, you will find articles of all kinds. You will find articles, for example, if you are doing से कॉग्निटिव साइंस में हमें साइकोलॉजी से भी बहुत आर्टिकल मिलते हैं और न्यूरो साइंस से बहुत सारे आर्टिकल मिलते हैं। आपको ये देखना है कि आपकी कहानी के लिए रेलेवेंट क्या है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि भाई सेटिंग द नैरेटिव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज इट दैट यू वांट टू टॉक अबाउट? if you want to talk about the psychological aspects of something very important, then you pick up more from the psychology part, and then the neuroscience citations become an appendage। वो एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाएगा कि भाई ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस, इसमें ये सारे ब्रेन एरियाज इन्वॉल्व है। अगर आप का न्यूरो साइंस रिलेटेड काम है, मान लीजिए आपने एफएमआरआई किया है या ईआरपी किया है जिसमें न्यूरो साइंटिफिक एस्पेक्ट्स बताना बहुत जरूरी है, तो then you will basically shorten the psychology part of things and then you will talk in more detail about the neuroscience part of things। ठीक है। so how does one select articles for a research paper? Basically depends upon what is it that you want to tell। आप क्या कहानी कहना चाह रहे हैं, आप की कहानी में इम्पेटस कहाँ से आ रहा है, इम्पैक्ट कहाँ से आ रहा है, हाउ आर यू गोइंग टू सेट अप द स्टोरी। so that is very very important, and that is what is the deciding factor। ठीक है। I can see another question। अच्छा, anybody, if you have questions, you can just type in the chat box। I am reading that now। So एक और क्वेश्चन आएगी, what would be the good number of previous findings we can mention in the discussion and review literature? दो तरह से होता है। पहली चीज होती है जब आप इंट्रोडक्शन सेक्शन में आप रिसर्च फाइंडिंग्स लिख रहे हैं, तो आप अपना केस बिल्ड कर रहे हैं। आप उस टॉपिक को क्रमवार तरीके से ब्रॉड हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में डिवाइड कर लीजिए। फॉर एग्जांपल, जब मैं विजुअल वर्ड रिकॉग्निशन पर पेपर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं ब्रॉडली रीडिंग के बारे में बात करना शुरू करूंगा, मैं वर्ड रिकॉग्निशन के प्रोसेस के बारे में बात करना शुरू करूंगा, मैं राइटिंग सिस्टम्स के बारे में बात करना शुरू करूंगा। मैं ये ब्रॉड टॉपिक्स लूंगा, फिर उनके अंदर थोड़े से सब हेडिंग्स होंगे जिसमें माने आप थोड़ा और डिटेल में चाहिएगा। तो एक वो हो गया, जिस इंट्रोडक्शन या रिव्यू के समय आ गया। बट जब डिस्कशन की तरफ जाते हैं तो आपको वो फाइंडिंग स्पेसिफिकली पिक करनी होती है जो ज्यादातर करके जो प्रैक्टिस है कि भाई व्हाट आर द फाइंडिंग्स दैट आर अलाइनिंग विद योर फाइंडिंग्स। सो प्रीवियस कौन सी फाइंडिंग्स हैं जो अलाइन कर रही हैं आपकी फाइंडिंग्स में। तो वो सारी फाइंडिंग्स को ऑब्वियसली आप जितनी ज्यादा लिख सकें, बट ऐसा नहीं है कि आपने 15 16 20 लिख दी। जो 2 या 3 मोस्ट रेलेवेंट, मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड फाइंडिंग्स है, उनको ही आप रेफर करते हैं, उनको ही आप साइट करते हैं। आप सब कुछ साइट नहीं कर देते हैं। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, वर्ड रिकॉग्निशन में फ्रीक्वेंसी इफेक्ट होता है एक, जिससे ये पता चलता है भाई हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स आर रिकग्नाइज फास्टर देन लो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स। तो आप उसके बारे में अगर लिखेंगे तो उसके जो मोस्ट क्रिटिकल पेपर हैं, एक बहुत रिसेंट पेपर ले लीजिए और एक जो सेमिनल पेपर होगा, जो पुराना बड़ा एस्टैब्लिश सा पेपर होगा। तो ये दोनों चीजें आप वहां पर कर सकते हैं, और इसी से डिसाइड होगा कि भाई आपने क्या क्या कोट किया। ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन रक्षा सिंह का था, तो आई होप दिस आंसर्स योर क्वेरी। The other thing is, what are the key features of writing a good psychology research paper in Scopus Journal? देखिए, whatever I have explained applies to all the disciplines within the social sciences। Broadly, it does not vary a lot depending from sociology to psychology to any other field। I have given you a very generic format कि भाई एक research paper जब आप construct कर रहे हैं तो वो किस तरह से होगा। ठीक है। तो ये इट डज नॉट डिपेंड। अगर आपने एक अच्छा पेपर लिखा है तो वो टिपिकली अच्छे जर्नल में एक्सेप्ट होगा। अगर आपने सारे जो स्टेप्स मैंने बोले ब्रॉडली उनका ध्यान रखा है और उनको बेहतर से बेहतर एग्जीक्यूट किया है, तो कोई कारण नहीं कि मतलब बढ़िया से बढ़िया जर्नल में आपका काम एक्सेप्ट होगा। ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज जो है वो
अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे हैं रिव्यू पेपर कैसे लिखते हैं। रिव्यू पेपर भी जो है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि भाई गोल ओरिएंटेड राइटिंग कैसी होती है, गोल स्पेसिफिक राइटिंग कैसी होती है। गोल ओरिएंटेड राइटिंग वो होती है जिसमें कि आपको अपना गोल पता है, आपको ऑलरेडी अपनी कहानी पता है कि आप क्या कहानी कहना चाह रहे हो। जब आप जो आपकी कहानी सेट है, तो फिर आप एक वकील की तरह वही वो सारे फैक्ट्स उठाते हैं जो आपकी कहानी से अलाइन करते हैं, जो हाईलाइट करते हैं कि आपकी कहानी क्यों इंपॉर्टेंट है। और उसी फॉर्मेट में ये सारी चीजें, जैसे अब रिव्यू पेपर अगर आप कर रहे हैं, रिव्यू पेपर में भी ऑब्वियसली कई तरह के, मतलब आप मेटा एनालिसिस टाइप का पेपर कर सकते हैं। आप एक जेनेरिक रिव्यू कर देते हैं जिसमें कि आपने टॉपिक को हाईलाइट किया है, एक ब्रॉड टॉपिक है, उसकी सब हेडिंग है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके गैप्स है, उसमें और क्या किया जाना चाहिए। टिपिकली जो रिव्यू पेपर का गोल होता है एज अपोज टू एक्सपेरिमेंटल पेपर का गोल, रिव्यू पेपर का गोल होता है टू हाईलाइट द स्टेट ऑफ द आर्ट इन दैट गिवन फील्ड। तो बेसिकली अगर आप रिव्यू पेपर 2024 में लिख रहे हैं, तो मान लीजिए आपने रीडिंग पर लिखा या एकेडमिक अचीवमेंट पर लिखा या किसी एक कोई भी टॉपिक आप उठा लीजिए, आप जिस भी टॉपिक पर लिख रहे हैं उस टॉपिक का एक बर्ड्स आई व्यू क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई, रिसेंटली क्या काम हुआ, इन सभी कामों की क्या स्ट्रेंथ थी, इन सभी कामों से आपको क्या मिला। ये सारी चीजें आपके रिव्यू पेपर में आनी चाहिए। और रिव्यू पेपर का जो आखिरी का हिस्सा होता है, जो जनरल डिस्कशन जिसे हम कह सकते हैं, एक्चुअली वो जनरल डिस्कशन की तरह से नहीं होगा, वो इस तरह से होगा कि गैप्स या फ्यूचर implications या व्हाट नीड्स टू बी डन, यू हैव टू टर्म इट इन अ सर्टेन वे दैट द पर्सन हु इज रीडिंग योर रिव्यू पेपर रियलाइजेस कि अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन है जो आउटस्टैंडिंग है, इस टॉपिक में जो रिसर्च हुई अभी तक 30 साल की, 40 साल की, 20 साल की, वो 20 साल, 30 साल, 40 साल की रिसर्च के बाद हमें मिला क्या, और इसमें फिर क्या क्या क्वेश्चन बाकी रह जाते हैं आंसर करने को। रिव्यू पेपर में ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि आप ये आइडेंटिफाई करें कि ओपन क्वेश्चंस अभी भी क्या हैं, मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस क्या रही हैं जो अभी तक रिसर्च हुई है, और उनको आगे चल के कैसे एड्रेस किया जा सकता है, नए क्वेश्चंस कैसे उठाए जा सकते हैं। और जब जो नए क्वेश्चंस आप उठाएंगे उनको आप ये कह लीजिए कि उनको किस तरीके से उठाएंगे, आप उनका क्या अप्रोच होगी, कौन से मेथोडोलॉजीज आपको फेवर करनी है आगे चल के। तो एक रिव्यू पेपर टिपिकली एक गाइड की तरह होता है, एग्जॉस्टिव होता है एक बुक चैप्टर की तरह, बट उतना बड़ा नहीं होगा। मगर इट इज मोर ऑफ अ पेपर जो आपकी फील्ड को बड़ी क्रिटिकली एग्जामिन कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसकी वीकनेसेस को हाईलाइट कर रहा है, और फ्यूचर का पाथ सेट कर रहा है। टिपिकली एक रिव्यू पेपर वो होगा जो फ्यूचर का पाथ सेट करेगा कि भाई आने वाले 10 सालों में या 15 सालों में या 50 सालों में इस तरह की रिसर्च की आवश्यकता है। तो आई होप इट आई आंसर लिटिल बिट अबाउट कि रिव्यू पेपर, ये 2-3 लोगों का सवाल था। तीसरा कोई कह रहा है कि भाई बुक चैप्टर क्या लिख रहे हैं। मैंने अभी ऑलरेडी बोला कि भाई बुक चैप्टर, अच्छा बुक चैप्टर, किसी ने पूछा हाउ डू वी कंट्रीब्यूट चैप्टर इन ए बुक। टिपिकली बुक चैप्टर्स इंडियन एकेडमिया में बाय इनविटेशन होते हैं। तो अगर आपके कोई मित्र हैं, कोई आपके जानने वाले हैं, अगर वो कोई बुक एडिट कर रहे हैं या आप एक बुक एडिट कर रहे हैं, टिपिकली क्या होता है, आपको इनवाइट किया जाएगा बुक चैप्टर कंट्रीब्यूट करने के लिए। आप खुद से सबमिट नहीं करते हैं बुक चैप्टर। कोई ना कोई जो एडिटर्स होंगे बुक के या पब्लिशर होंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे, तभी आप बुक चैप्टर लिखते हैं। आप जैसे जर्नल्स आर ऑलवेज ओपन फॉर सबमिशंस, रिव्यू आर्टिकल्स कैन ऑलवेज बी सबमिटेड टू जर्नल्स। बुक चैप्टर में ये फॉर्मेट काम नहीं करता। बुक चैप्टर टिपिकली बाय इनविटेशन होते हैं, या फिर पब्लिशर आए और उन्होंने आपको बुक का आइडिया दिया, तो आप उस बुक के एडिटर बन गए, आपने कहा अच्छा ठीक है मैं खुद से एक किताब लिख रहा हूँ, उसमें मैं ये 2 चैप्टर दूंगा, मेरा फ्रेंड ये 2 चैप्टर देगा। किसी और रिसर्चर्स को, आपने एमिनेंट रिसर्चर्स को आपने उनको अप्रोच किया और बोला कि भाई इस टॉपिक पर चलिए एक किताब लिखते हैं। और फिर उसके बाद आपने डिसाइड किया भाई उस किताब के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स होंगे एक बुक का। टिपिकली जैसे स्प्रिंगर है या कोई भी और है, उन सबके फॉर्मेट होते हैं कि भाई इस फॉर्मेट में आप प्रपोजल दीजिए, ये चैप्टर्स होंगे, ये उन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट होगा। तो ये सारी चीजें जब आप प्रोवाइड करते हैं, तब आप बुक चैप्टर एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। एक क्वेश्चन है कि कैन वी बेस आवर लिटरेचर रिव्यू सोनली ऑन रिसर्च पेपर्स, इज इट एसेंशियल टू रिव्यू बुक्स एज वेल। टिपिकली जब मैं जर्नल आर्टिकल्स की बात करता हूँ,
नॉट थीसिस में कई बार आप बुक्स को भी रिव्यू करते हैं और कई बार आप जर्नल आर्टिकल्स को भी रिव्यू करते हैं, बट टिपिकली जर्नल आर्टिकल्स की जब मैं बात करता हूँ तो आप रिसर्च पेपर्स पर ही मेनली बात कर रहे होते हैं और रिसर्च पेपर से ही सोर्स आउट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन या लिटरेचर रिव्यू। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और किसी ने पूछा है रिसर्च बुक के लिए, रिसर्च बुक भी इसी तरह जैसे आप कोई भी किताब लिख रहे हैं, आपको जिस भी पब्लिशर ने अप्रोच किया या आप अगर किसी पब्लिशर का आपके पास बुक लिखने का एक आइडिया है तो आप पब्लिशर को अप्रोच करेंगे, पब्लिशर आपको एक फॉर्मेट देगा, वो प्रपोजल का फॉर्मेट होगा, उसमें आपसे बोला जाएगा कि भाई आपकी बुक का एम क्या है, स्कोप क्या है, ब्रॉडली क्या कवर करना चाहते हैं इस रिसर्च में। और फिर उसके बाद वो आपको चैप्टर के फॉर्मेट देंगे कि भाई बुक में क्या पार्ट है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 1 में क्या चैप्टर्स आएंगे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए, पार्ट 2 में क्या चैप्टर्स आएंगे उनके बारे। तो इस तरह से करके एक बुक का प्रपोजल प्रिपेयर होता है, वो बुक का प्रपोजल रिव्यू के लिए भेजते हैं पब्लिशर्स, दूसरे कई सारे लोगों के पास जाता है, एक्सपर्ट्स के पास जाता है, एक्सपर्ट्स देखते हैं कि अच्छा ये बुक लिखना जरूरी है या जरूरी नहीं है। उसके बेसिस पर अगर आपका प्रपोजल पास हुआ तो फिर आप उसी प्रपोजल के फॉर्मेट पर अपना बुक राइटिंग स्ट्रक्चर करते हैं। तो आई थिंक these are all the questions that I have got. If there is anything, please let me know. तो ऑनलाइन सोर्सेज बुक्स के लिए आपने बोला, तो ऑनलाइन सोर्सेज बुक टिपिकली देखिए क्या होता है, बुक्स आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट्स, है ना। तो बुक का टाइटल वगैरह तो आप पता कर लीजिए और फिर अमेजोन पर जाकर आपको खरीदना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी ऑनलाइन बुक लाइब्रेरीज के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, बट कई बार आपको गूगल बुक्स में मिल जाएगा कि कुछ बुक्स गूगल ने ट्रांसक्राइब की हुई हैं, गूगल बुक्स में आपको मिल जाएंगी। देर आर ऑल्सो ऑनलाइन ई लाइब्रेरीज, देर आर लॉट ऑफ ई बुक्स अवेलेबल। तो आपको उस तरह से थोड़ा सा जाकर के सर्च करना पड़ेगा। मुझे ध्यान नहीं है कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आपको सारा बुक्स का फुल एक्सेस मिल जाए। बुक्स टिपिकली आर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट, सो यू कैन नॉट रियली गेट इट। So, dear participant, please raise your hand if you have any questions to our speaker. I can see one question from Zohra. She says, framework flow for constructing argument in the discussion section. See, it is just like an advocate would do. आप कोई भी एडवोकेट को अगर देखेंगे तो आप कहाँ से शुरू करते हैं? डिस्कशन सेक्शन में आप पहला जो पैराग्राफ होता है वो बताते हैं कि भाई आपने ये रिसर्च क्यों करी, उसका एम क्या था, उस एम के बारे में आपने कुछ बताया कि भाई दिस इज द एम विद विच वी कंडक्टेड दिस रिसर्च, दिस इज द टास्क दैट वी यूज, दिस इज द फाइंडिंग दैट वी गॉट। वो आपका एक ओपनिंग पैराग्राफ हो जाता है डिस्कशन का, ओपनिंग पैराग्राफ हो जाता है डिस्कशन का। वो आपने डिस्कशन कर लिया और उसके बाद फिर आपने एक एक करके जो अपनी स्ट्रॉन्ग फाइंडिंग्स है, जो हाईलाइट्स हैं आपके रिसर्च फाइंडिंग्स की, उनको एन्यूमरेट करना स्टार्ट किया। जब आपने उनको एन्यूमरेट करा उसके बाद आपने उस मतलब रेलेवेंट लिटरेचर कोट करी कि भाई माय फाइंडिंग्स आर इन लाइन विद प्रीवियस रिसर्च, 1 2 3 पेपर वहां पे डाले और फिर उसको कंक्लूड करा कि ब्रॉडली इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या कंक्लूजन है, उस कंक्लूजन का क्या इंपॉर्टेंस है इन द लार्जर फ्रेम ऑफ थिंग्स। और ये बेसिकली आपका डिस्कशन सेक्शन का फॉर्मेट आता है। Yes, मृत्युंजय ने पूछा है कि भाई sir, one of our आईआईटी faculty कान। member. हाँ Hello. So, one of our हाँ हाँ faculty बोलिए, member ask you something. हाँ बताइए। Hello, sir. Sir, actually, my question is how to remain motivated when we write a research paper. Like, it is very difficult to stay in a paper for very long time. तो वो motivation को कैसे maintain रखा जाए, वो interest को कैसे maintain रखा जाए research article लिखने में? तो वो मेरा मोटिवेशन इज कंटिंजेंट ऑन गोल। तो अगर इफ यू हैव अ गोल, सी रिसर्च पेपर्स आर नॉट रिटन इन वैक्यूम। इफ यू आर कंडक्टिंग रिसर्च, इफ यू हैव अ स्टोरी टू टेल, देखिए कवि लोगों के बारे में कहा जाता है कि ना कि जहां भी आप उनको मिल जाइए वो आपको एक कविता सुना देते हैं, है ना। तो वो बड़ा ऐसा है कि भाई रिसर्च राइटिंग उस तरह से नहीं होती। रिसर्च राइटिंग जब आपके पास कहने के लिए कुछ होगा तभी आप कहेंगे।
और उसके लिए रिसर्च करना जरूरी है. सो द ओनली मोटिवेशन फॉर राइटिंग अ रिसर्च पेपर इज इफ यू आर कंडक्टिंग रिसर्च. नोबडी कैन फोर्स यू टू राइट अ रिसर्च पेपर बिकॉज देन व्हाट विल यू राइट. ठीक है. सो द एक्चुअल मोटिवेशन पार्ट इज टू बी कंडक्टिंग रिसर्च. And if you're conducting research, you're going to be able, you're going to want to report it. You want the world to know कि यार ये मैंने इतनी बढ़िया रिसर्च करी है, इससे ये पता चला है ना. और अच्छा, इससे मुझे एक और चीज ध्यान है कि भाई you should be curious. Where will that, where will be the motivation for conducting research come from? It typically will come from your curiosity. You have done a particular degree, you have done something, now you are teaching somewhere. How will you work that out? So if you are curious about something, you will start with reading it. If that will give you question, then you will conduct research, then you will have something to report. तो ये हाइपोथेटिकल डिडक्टिव मॉडल का एक पूरा साइकिल है. अगर आपके पास इनिशियली कोई सवाल है और उस सवाल को आप उसके बारे में उसका उत्तर पाने के लिए सफिशिएंटली मोटिवेटेड हैं, तब आप जाएंगे और आप पढ़ेंगे और बहुत सारा पढ़ेंगे, और बहुत सारा पढ़ने के बाद और सवाल आएंगे, और फिर जो कुछ सवाल ऐसे होंगे जिनका जवाब लिटरेचर में आपको लगेगा कि यार ये तो संतोषप्रद नहीं है, तब फिर वहां से आप अपनी रिसर्च करने के लिए मोटिवेट होंगे. और जब आप अपनी रिसर्च करेंगे तभी आपके पास कुछ कहने के लिए होगा. और जब तक कुछ कहने के लिए नहीं होगा, तब तक रिसर्च पेपर नहीं लिखे जा सकते. मृत्युंजय मेरे से पूछ रहे हैं कि आईआईटी कानपुर डज इट प्रोवाइड एक्सेस ऑफ इट्स लाइब्रेरी टू द स्टूडेंट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज? नॉट रियली. सो जहां तक मुझे पता है कि आईआईटी कानपुर की लाइब्रेरी इज ओनली एक्सेसिबल बाय स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी कानपुर. मगर टिपिकली होता है कि अभी मैं किसी से बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार है वो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन पर काम करना चाह रही है, जिससे कि ये होगा कि अगर कोई जर्नल है, एल्सेवियर का है या स्प्रिंगर का है, उसका सब्सक्रिप्शन आपकी गवर्नमेंट ले लेगी और वो सारे यूनिवर्सिटीज को, सारे स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगी. तो होपफुली अगर ऐसा होता है तो आप सभी के पास होगा. जिसके पास ये नहीं है, देयर आर ऑल्सो वेबसाइट्स अवेलेबल जहां पर आप जाकर के ये जर्नल्स वगैरह ढूंढ सकते हैं. गूगल स्कॉलर पर टाइप करिए, कई बार उसमें कई सोर्सेज निकल आते हैं. अंजलि सिंह कह रही हैं कि भाई, इज इट नेसेसरी टू पब्लिश अ पेपर इन स्कोपस जर्नल? दैट पेपर शुड बी डेटा बेस्ड और इट कैन बी आर्टिकल. इट कैन बी आइदर. आई मीन, इट कैन बी a review paper, it can be data based, it does not matter. As long as you have an interesting story to tell, people will read it. That is the bottom line. And if it is a good story, you will be able to publish it in good journals. That is the bottom line. How is the story? What are the criteria for good journals? The criteria are that the research is conducted very well. You have taken care of the methods. You have taken care of each and every small thing. You have constructed the arguments very well. तो बढ़िया से बढ़िया जर्नल में आपका पब्लिकेशन होने के चांसेस है. What are the parameters we should consider while deciding a journal for publication? जैसा कि मैंने दिखाया, जो भी जर्नल आप एम करना चाहते हैं, आप जाइए उसका एम्स एंड स्कोप पढ़िए. वो एम्स एंड स्कोप ही आपको बताएगा कि भाई उसमें किस तरह की रिसर्च छपती है. अगर आपको पढ़ने की आदत है, अगर आप एक पर्टिकुलर जर्नल को फॉलो करते रहे हैं, जब आप रिसर्च लिटरेचर रिव्यू कर रहे होंगे, तब आपको ऑलरेडी दिखेगा कि भाई इस तरह का काम किस किस जर्नल में छपता है. आप ऑलरेडी उसका नोट कर सकते हैं कि भाई मैं इस तरह का काम करने जा रहा हूँ और ये काम जो है इस जर्नल में छपा है. तो आप उस जर्नल में वापस जा सकते हैं कि भाई अच्छा ठीक है, मैंने भी इसी तरह का काम किया है, क्या मैं यहाँ सबमिट कर सकता हूँ. बहुत सारे और क्राइटेरिया भी हैं. लोग इम्पैक्ट फैक्टर देखते हैं, लोग साइटेशन इंडेक्स देखते हैं, तमाम चीजें देखते हैं. मैं समहाउ वो बहुत सारी चीजें नहीं देखता हूँ उस तरह से. अगर एक जर्नल में उस तरह का काम छपता है और वो रेलेवेंट है, हाईली सर्कुलेटेड है, तो वहां पर सबमिट करने में कोई बुराई नहीं. हरप्रीत का हैंड रेज्ड है. आप क्या पूछना चाहते हैं? मे बी यू कैन टाइप और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. Yes, Sir, good Harpreet. morning. This is Harpreet. Yeah, thank you so much. Sir, this is Harpreet Rakra, and the topic of my study is to find out the effect of psychometric testing on the quality of hiring. Am I audible? So, please continue. Yeah, so this is the topic, sir, trying to find out the effect of psychometric testing on the quality of hiring. I would first want to know, sir, is there any right way, ideal way to find out which all companies are using psychometric testing on internet?
Again, my answer is as good as yours. So typically, if there is something like this, you will go on Google and you will start. See, आजकल सारी चीजों की चाबी गूगल के पास है, तो आप पहली चीज तो ये कर सकते हैं, साइकोमेट्रिक टेस्टिंग एंड इट्स एप्लीकेशंस पर थोड़ा सर्च करिए। आप बहुत सारी कंपनीज हैं, कंसल्टेंसी, इनफैक्ट कंपनीज डायरेक्टली आजकल रिक्रूटमेंट नहीं करती हैं, दे टिपिकली हायर थ्रू एचआर एजेंसीज। Yes, sir. तो Yes, जो sir. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग के मेथड्स हैं, ये एचआर एजेंसीज यूज करते हैं। So one of the things that you can actually look for is ki what are the HR agencies that are using the test that you are working on, and then directly contact them ki bhai theek hai, do you use this, do you use that, and I am creating a test or I want to work on this test, and then is where you will sort of talk to them. That is typically what I would do, frankly. Okay. And sir, if I confine it to IT sector only, and if I find that the companies are not too many, can I take one more field also along with IT? Why not? Typically, आजकल तो you don't limit your work or your scope to just one or two fields. कई बार आप जहां जहां भी इसका यूज है, कहीं पर डायरेक्ट यूज है, कहीं पर इनडायरेक्ट यूज है, आप सब जगह उसको यूज करते हैं। Okay, sir. So you can Thank obviously you so much. yeah. Thank you. Thank you, Harpreet. Thank you, sir. Once again request to all the participants, if you have any questions, sir is ready to have your questions and answer them. Please raise your hand if you want to directly ask the तो question. एक क्वेश्चन मेरे को दिख रहा है कि इज इट गुड टू पब्लिश रिसर्च पेपर इन अ मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल ऑन ए सब्जेक्ट बेस्ड जर्नल? अगेन डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ स्टोरी यू हैव and the kind of impact you want to have, the audience of your paper. So you will decide कि भाई आपके पेपर की ऑडियंस क्या है। मल्टीडिसिप्लिनरी भी हो सकते हैं। अगर आप मल्टीडिसिप्लिनरी ऑडियंस को अप्रोच करना चाहते हैं, जैसे हरप्रीत ने पूछा कि भाई मैं आईटी के अलावा भी और फील्ड्स को अप्रोच करना चाहती हूँ, तो ऑब्वियसली यू राइट इन दैट मल्टीडिसिप्लिनरी जर्नल. Otherwise, sometimes some topics are so niche that they can only be published in a subject-based journal. So then you focus on the subject-based journal and try and submit there. ठीक है? I hope I answered your question. Yes, sir. I think most of the participants have asked all their questions and queries to you. So, should we wait or we should move towards one? I am done from my side. There's nothing more I want to say. Okay, so maybe as we are okay, I think participants have no questions now. Mhm. So we should move towards concluding these sessions. So Mhm. thank you so much, sir, for conducting this sessions of 10 days faculty development program. And you are very effectively delivering your talk, and you are conducting a very wonderful questions in question answer sessions, including or queries or from the side of our participants related uh, to finding the journal and publishing their work as possible as they can. So now I request to my colleague Dr. Zia Afroz to kindly propose a vote of thanks for this session. A very good morning to all of you. Myself, Dr. Zia Afroz, Assistant Professor Economics, Department of Humanities and Social Sciences, Integral University, Lucknow. I would like to take this moment to extend our heartfelt gratitude to everyone who contributed to make today's session of academic writing and publication, design of paper using template, calculations of impact factor of a journal, citation index, ISBN, and ISSN. A big thank you to our esteemed speaker, Dr. Ak Verma, Assistant Professor, Psychology, Department of Humanities and Social Sciences, and Interdisciplinary Program for Cognitive Science at IIT Kanpur, for sharing their invaluable insights and expertise with us. Your knowledge has not only enriched our understanding, but also inspired us to strive for excellence in our professional endeavors.
I also want to express our appreciation to all the participants for your active engagement and thoughtful contributions. Lastly, thank you to everyone here today for your presence and participation. Thank you, everyone. Thank you. All right. Thank you. Can I log out now? Yes, sir. Okay. Yes. Thank you, sir. everyone. Thank you. I hope the session was all right for you all. Yes, sir. It was Okay. really nice. Thank you once again. Thank you so much. Bye. So all dear participants, there's a 5 minutes break, and after that we will have a valedictory sessions in which Dr. Anas will summarize and revisit all those sessions which we have covered in last 10 days. And then we will have a word of thanks for this faculty development program. So there is a 5 minutes break. After 5 minutes, we will come back and resume this program. Hello, dear participants. So after a break, we are once again here for this for the valedictory session of this 10 days faculty development program. So in this valedictory sessions, we will recall all the sessions, and in this sessions, Dr. Anas Jamil will summarize all the lectures and sessions conducted by different speakers. So I request you all kindly be present here so you can once again get a chance to go through all those sessions by the summary given by Dr. Anas Jamil. And after this summarizations, we will send you a link of assignment which you need to attempt and send it to us. Then you will get a certificate for this FDP. So now, without wasting any time, now I request and to Dr. Anas Jamil to kindly begin the valedictory sessions with your summarization. Thank you, Shavez, sir. A very good morning to esteemed colleagues, distinguished guests, and all the participants. I am Dr. Anas Jamil, Assistant Professor in the Department of Humanities and Social Sciences. I'm going to be the host for this valedictory session. It is an honor to welcome you to this valedictory session of this International Faculty Development Program on Fundamentals of Research in Social Sciences, organized by this Department of Humanities and Social Sciences, Integral University. Over the past 10 days, we have embarked on a journey of learning, collaboration, and intellectual growth, guided by some of the most esteemed scholars in the field. This program, held from the 3rd June to 13th of June 2024, has been meticulously designed to cover various facets of research in social sciences. Each session was a blend of theoretical insights and practical applications aimed at enhancing the research skills of faculty members and all the participants. The highlights of these sessions that I have summarized as follows. In the day first, Professor Rajesh Mishra discussed the meaning, nature, scope, and relevance of research in social sciences. Professor S.M. Khan focused on the selection and formulation of research problems and the interdisciplinary approach in this research. In day two, Professor Rajiv Pandey provided insights into statistical techniques for research design. Professor Sajid Jamal elaborated on various aspects of research design. In day third, Dr. Rajesh Kumar covered essentials of research design and planning. Professor A.R. Siddiqui analyzed how to do literature review and discussed many more techniques to do this literature review. On day fourth, Dr. Vinod Kumar Kavaria explored the use of artificial intelligence in empowering researchers. That is the most important aspect that we need to learn right now, because with this pace of development, we have to make sure that we must be
have this experience of this advanced technologies to do research activities. On day 4, Dr. Nausin Mistry discussed the making of questionnaires, which is one of the most prominent thing while conducting a research, and questionnaires as well as interviews and experimental observations. On day 5th, Dr. Kiran Lata Dangwal explained data collection methods. Dr. Syed Khurram Nisar critically examined contemporary research practices in the Indian social sciences. He also discussed many more ethical norms that we need to abide with while doing the research. On day 6, Professor Masood Hassan Siddiqui talked about measures of central tendency and variation, which are statistical techniques that has to be used while doing a research. Dr. Shailesh Kumar Kaushal discussed parametric and non-parametric tests, including ANOVA. On day 7, Dr. Tausif Fatima highlighted the roles and importance of research ethics committees, which you will find in every university, that each and every research paper must be passed by these research ethical committees, which go through the intricacies of your research. Dr. Rashfit Shinghal covered intellectual property rights and issues of plagiarism. And we know that there are plenty of identification of plagiarism by different software that universities have adopted and incorporated, and we have to be abide with the percentage of plagiarism, and then only we can communicate those research papers. And we know that UGC has given the guidelines for the same. On day 8, Dr. Manzoor Ali presented on project proposal and referencing tools, how to draft a research proposal, that we know that Indian Council of Social Science Research, Indian Council of Social Sciences have given many of the projects. They used to notify this on their websites, and we as a faculty members need to draft research proposals to make sure that newer things we can do research on novel ideas right now that that will help building the society just and fair. On day 9, Dr. Daud Salim Faruqi emphasized evidence-based research. Dr. Chanchala Jain provided training on data analysis using Excel, which is one of the software that we use while doing the research. On this today's session, Dr. Ark Verma guided participants on academic writing, publication, and the calculation of impact factors and citation indices. We extend our heartfelt gratitude to all the speakers for their invaluable contributions and for sharing their vast knowledge and experience. Their insights have undoubtedly enriched our understanding, have equipped us with the tools to enhance our research endeavors. As we conclude this enriching programs, we take with us not only the knowledge and skills required, but also the connections made and the collaborative spirit fostered. It is my sincere hope that each participant will continue to apply these learnings to their academic and research pursuits and contributing to the advancement of social sciences. Thank you all for your active participation and engagement throughout this program. Let us continue to strive for excellence in our research and academic endeavors. Now, I would like to tell Dr. Chavez, sir, please propose the vote of thanks for this valedictory session and the whole FDP program that we were part of all these 10 days. Over to you, sir. Thank you, Dr. Anas, sir, for such rigorous summarizations of all the sessions conducted throughout this 10 days faculty development program. And I pretty much sure that your summarization will definitely help our participant to recall, revisit all those sessions. And it will definitely helpful for them in their future endeavor. Now it's a time for the vote of thanks. So on behalf of the faculty member, Humanities and Social Sciences,
and member of the organizing committee member of this 10 days faculty development program. I, Dr. Mohammad Shavez, feel privileged to propose a vote of thanks of this faculty development program. Firstly, I extend my deepest gratitude for our Honorable Chancellor and founder of Integral University, Professor Syed Wasim Akhtar sir, whose invaluable efforts for the university and providing a path of getting quality education to the student of this country. I would also like to express my sincere thanks to Honorable Pro-Chancellor Dr. Syed Nadeem Akhtar sir, who is highly determined to persevere Integral University as a cornerstone of modern and scientific education. It is my honor to extend heartfelt gratitude for our Honorable Vice Chancellor Professor Javed Musarraf sir, who is the person and great admirer of research and excellence, who has spontaneously provided us his invaluable support for organizing this FDP and such kind of events which aimed at holistic knowledge of all the students and academicians. I would also express my sincere thanks to our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Akil Ahmed sir, who is diligent and committed to guide us in organizing such kind of academic events. I'm highly indebted and having lots of gratitude and respect for our distinguished resource person who not only spared their invaluable time for us to grace this 10 days faculty development program, but also enlightening us with their commendable talk on the given modules. Thank you for enriching our knowledge and understanding on fundamentals of research in social sciences. Next, I would also like to express a special thanks to our respected head of the department, Professor Ziba Keel, who is deeply committed for providing holistic education to our student and actualize the mission of this university. Her guidance and encouragement is of paramount importance that make this event possible and also successful. I'm also thankful to all my esteemed faculty members, particularly our moderators who efficiently conducted all the sessions of this FDB and make this FDB a successful event. Now, last but not the least, I would like to express my huge thanks to our participants whose presence and active participation greatly helped to achieve the goal of this faculty development program. Thank you once again all. Hope to see you soon in near future. You to a link of assignment for this FDP, you need to attempt it and submit it so you can get the certificate for this FDP. It just give me a moment. चैट में कैसे भेजेंगे स्क्रीनशॉट लगाना चैट में भेजेंगे इसको हाँ लिंक जूम लिंक कहाँ है चैट में भेजना ना तो ऐसे पेस्ट कर दो मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा ना ज्वाइन करो प्लीज बोलो
Dear participant, the link of the assignment has been posted in the chat box. Kindly make sure that it is working. Yes, sir, it's working. Thank you for letting us know about it. Dear participants, kindly complete the feedbacks and assignment which has been given in the chat box and send it. The assignment needs to be sent it by evening, so we can provide you a certificate uh, after that.